खत्म हो जाएगा और डीएस से ना पूछकर लोग एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। इंटरव्यू का जो हुँ, प्रोसीजर है, इंटरव्यू का जो राउंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि एआई के आने से इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है? आई एम हुँ, हुँ, आस्किंग कि एआई आने से क्या हाँ, डीएस से थोड़ा कम हो सकता है? क्या इंटरव्यू प्रोसीजर चेंज हो सकता है? हुँ, हुँ, क्या हुँ, फ्यूचर में रिक्रूटमेंट के लिए जो टीम्स है वो इस पर डिस्कस कर सकती है कि हम लोग हाँ, डीएस से उतना फोकसली ना पूछे। अभी क्या है कि अभी 80% डीएस से पूछा जाता है, 20% सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिज़ाइन और हाँ, बेसिक छोटा बहुत डेवलपमेंट पूछ लिया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अश्विनी राठौड़ फ्रॉम बेंगलुरु। शी इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन रेजर पे। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है इंटरव्यूज़ के लिए और उन्होंने रेजर पे क्रैक किया और अभी गूगल का भी इंटरव्यू उन्होंने क्रैक कर दिया है। डिसीजन अभी नहीं आया है और उन्होंने 3-4 इंटरव्यूज़ के राउंड जो गूगल के होते, तो आज जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में जो कि हम सबको इंस्पायर करेगी और हम सबको एक लर्निंग पाथ मिलेगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं जबकि इंटरव्यूज़ की कॉल भी नहीं आ रही है और उन्होंने दो दो एक बहुत बड़ी टेक कंपनीज के इंटरव्यूज़ को क्रैक किया है। वेलकम अश्विनी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। yeah, hi Shoaib, hi everyone. हाउ आर यू? Yeah, I'm good. How about you? आई एम ऑल्सो गुड। Okay, hi everyone, I am Ashwini. So I'm basically from Vijaypura, Karnataka, and I have graduated from STM CET, Dharwad, in computer science in 2022. So now I am working as a software engineer in Razorpay. It's a fintech company, and basically I started my journey from on-campus company Impulsys to Tech System, then Razorpay. So this is in brief about me. ओके, सो हाउ यू गॉट इनटू द रेजर पे? बेसिकली कैसे Uh, रेजर पे के लिए एक इंटरव्यू कॉल्स आई और कैसे yes. इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया? बेसिकली ये हो रहा था रेज़र पे से पहले मेरा गूगल का चल रहा था। डायरेक्टली रेज़र पे में नहीं आया। तो उस टाइम पे मेरा डीए से थोड़ा बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन हो गया और सारे फ़ोरम्स में लीड कोड हो गया लिंक्डइन पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थी। एंड उसी टाइम पे ऐसे हुआ कि मैंने एक इंस्टाग्राम सिक्योरिटी के रिलेटेड मैंने कुछ शेयर किया था आर्टिकल लिंक्डइन पे। तो उसके बाद मुझे 2-3 कॉल्स आए थे उसमें से एक था रेज़र पे। So they asked me whether I'm ready to give interview for 3 rounds. Then I said yes, and it was going parallelly with Google and one more company called as Info Edge, and this one Razorpay. All three. तो यू डिडंट अप्लाइड फॉर द रेजर पे? No, दे basically not Google Razorpay. I have not applied. I got called via LinkedIn. ओके। Mm. एंड अश्विनी, जस्ट I have a question before starting your career. How you got into the tech department and when you think that you can become a software engineer and you start learning and you start getting skills that require in the software engineering field. Yeah, I think till third year of my engineering, I was not even preparing and I was not even thinking of placement. I need to crack, I need to go somewhere else. It was during my third year after Corona and all. We went back to college again. And at that time, I met two of my juniors who were very much good at coding. And I heard from them that they literally solved more than 200 plus questions in Geeks for Geeks. And when I got to know that they solved this, and as a senior, I am not even, I don't know even basic concepts of DSA. I knew, but I used to start and again I used to stop. I never completed till graphs. So when I heard from them, I thought even my placements are coming. Almost I am in seventh sem. Then that was my placement period. So I thought I need to start now, and then I started from that day. But it was not completely till graph series, but it was DP basics only. I was able to solve easy and medium questions till then. And after that, when it was placement time. I did crack three companies in the college, including one off campus. And after that, I went to the first company as internship.
That was Zensar Technologies. And another one was where I went as a full time was Impulses. Then another one was Accenture, but I didn't go then. And this was the journey to start DSA. And I took middle long breaks, and even I forgot many times. Again, I picked up DSA, and after when it was Google, I did it very seriously, like completely. I was into DSA, and I got to know without DSA how hard it is to crack any even single company. Even it is paying you very less or high, you need DSA. So that was the peak time. 6 months I was completely into DSA. At in one go, I think I might have solved more than 300 plus this problems. And after that, it helped me to crack other companies, Razorpay and InfoEdge. And again, I got Accenture. So like this. Okay, so you are saying DSA is the main part to crack tech Yeah, interviews in yeah, 2025 still, in very the true. age of AI era. Yes. AI is booming now, but still what I feel is most of the companies they ask first question is do you know DSA? And I felt this and I got rejected more than 3 to 4 companies as well because of this thing only. Then I got to know अभी ये करना ही है, अभी इसको हम टाल नहीं सकते. तो Correct. हाँ, तो वो शुरू हुआ. अभी मैंने अभी रिसेंटली भी 2 मुझे कॉल्स आए तो दे वांट मी एज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर. So they were Oh, asking me, do you know about something prompt engineering, etc. Then now I got to know along with DSA, we know AI skills also. yes, yes. Hmm. So डीएसए की प्रिपरेशन मेनली आपने कॉलेज से स्टार्ट कर दी थी। Hmm. तो डीएसए की प्रिपरेशन करने के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे और डीएसए क्या है? अगर कोई डीएसए नहीं जानता है, अगर एक Hmm. लाइन में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डीएसए Hmm. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्म Hmm. डीएसए, सो व्हाट इज Hmm. दिस? अभी देखो होता है कि ऐसे किसी को कुछ लोग होते हैं उनको पहले से पता रहता है कि क्या डीएसए है और हम इसे करने से ही हमारा प्लेसमेंट होगा हमारा फ्यूचर है. दिस इज वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी कि हमारा ऐसा होता है कि हम टिपिकल गांव से आते हैं. हमें आइडिया नहीं रहता है हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई एजुकेटेड नहीं रहता और थोड़ा सा भी आइडिया नहीं रहता ऐसे ये स्टेप लेने से ये कर सकते फ्यूचर में. So it was me. So that's the reason till third year I was not aware I should do these things so I will get something else. जब मेरे दोस्तों को देख के ही मुझे वो पता चला कि ये सारी चीजें होते हैं प्लेसमेंट में. जैसे मैंने बताया जूनियर उसमें से एक बंदा था राम ना उस वो सॉल्व करता था और वो बहुत जल्दी से कर लेता था. तो मुझे भी वो उसको देख के अंदर से आता था कि भाई जूनियर कर रहा है और जूनियर इतना क्विकली सॉल्व कर रहा है वो भी पट पट से लॉजिक लिख रहा है. और एज ए यस, सीनियर आई एम नॉट एबल टू इवन थिंक व्हाट इज द लॉजिक. सो अभी समझ में आ जाता है एक डेटा स्ट्रक्चर पिक करो और उसको एल्गोरिदम क्या है चूज करो और लिखो. ये बताने में आसान होता है लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पे सॉल्व करने बैठते हैं कुछ भी होता है तो फट से दिमाग में नहीं आता है. और व्हाट आई फेल्ट इज डीएसए at one time we do right it will feel like yeah I know this thing but next day if you try to solve this same question you feel like you never saw this question before. So that guy Ram all of sudden one day we met in Bangalore and there he just random conversation was going and he asked me how is your DSA solve code solving is going on. Then I felt like ये तो मुझे याद भी नहीं था. कंपनी मिल गई सब मिल गई अब करना ही क्यों. ये दिमाग में आ गया था उस टाइम पे ऑन कैंपस होने के बाद. सो तो उसने बताया कि डीएसए अभी नेक्स्ट आने वाला है. देन आई वाज टेलिंग हिम आई एम प्लानिंग टू ask referral for Microsoft or Google after 1 year of experience. So I'm thinking of then he told if you are planning your planning won't work. You need to do some more things like system designing and DSA. Without this you can't go. Then he explained me actually all the things. What are the main topics we need in DSA? And right from 2023 October, he gave me actually a challenge. He told we both are starting today, October 2023. We shouldn't stop this till 2024, like 365 days challenge. And from that day, I start. ओके,
yeah, I created account in Lead Code, and we both started. But in the beginning, But I how felt, you, I'm asking how you explain a beginner who don't know DSA, like you didn't know huh, in 2022. So huh. how will you explain what is DSA? I can tell them, see, there are many things. अभी हम गूगल का ही ले सकते हैं. गूगल मैप्स हो गया. How it is applying all the concepts in their real world applications. See, we can see Google Map हो गया for shortest distance and time being, and how at what time we are going to reach to particular distance. All those things we are applying through via BFS, DFS, these all things. So uh, what I can tell to beginner is we need to pick one data structure. That is data हो गया हमारा, or algorithm how we are applying to solve that one, like the real problems which we are facing in these days. That is the main thing. वो time complexity space ये सब हम बाद में, पहले तो we need to see how we are going to reach to our goal. So I used to think like that. If one problem statement is given, first thing is not jumping into the solution, but I used to think what else I can do, even though it is worst code. First, let me write the all the logic and everything, and after I need to. I used to optimize by taking long time, like more than 3 to 4 hours sometimes in the beginning. So as a beginner, I feel that we need repeatedly revise all the DSA concepts and from the basic, even though it might be from hash include, but we need to start from the very basic. Then only if basic is strong, then we can go for some advanced topic without taking much time. So I used to go more for basics, almost arrays, strings, repeatedly solving repeated problems and trying to know that if there are there any alternate ways, and why all the toppers pick this problem only, and why did they solve this solution only. This one I used to do a lot. Okay, and Ashwini, just tell me the resources you have used to prepare the DSA. Yeah, as I told, when me and my junior we were preparing at that time, ChatGPT was still in process, like it was not completely into the Yes, in the early yeah, stage. yeah. So at that time, the thing happened is I was in tech systems, and when I jumped to tech system, it was Golang. Golang was totally new to me, and Yes, it's Google's language. So at that time, I wanted to know that in the beginning whether I can solve all the DSA questions in Golang, because earlier I was coding everything in Java, either C++. But later I started coding in Golang. I got to know Golang is very much easier to code than Java and C++. correct. So yeah, then I picked up Golang, and again I started all the questions to solve with Golang. अ, तो Okay. या तो वो हुआ, और उसके बाद रिसोर्सेज का आई वॉच्ड गीक्स संदीप जैन्स वीडियोस, एंड संदीप On जैन YouTube, सर, नो, actually I took one uh, paid DSA course. DSA algorithm. It was a free course actually at that time. I think now it is a paid course. Okay. And On Geeks for Geeks. even we get documentation of that. Hmm. And another one is W3 schools. Yes. Yeah, in Very W3, basic. yeah, Yeah. very basic. I told na, whatever it may be, if basic is strong, I can like, so whenever I do or solving, I go from basics itself. I've Yes. always planned to keep my foundation strong, then I'll go for advance. So all the W3 schools हो गया, CodeChef हो गया. I first go through the topics from YouTube, or else from the documentation, official documentation of the company whichever released that लैंग्वेज, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे रिलीज किया था, तो मैंने उसी को देके कोड स्ट्रक्चर हो गया, हाउ टू राइट इट, वो सब जानने के बाद जो छोटे छोटे वीडियोस रील्स होते थे शॉर्ट्स टाइप, तो वो देके मैंने वही रिसोर्सेस यूज, बुक्स भी थोड़े इतने मुझे ये नहीं लगे कि मैं जल्दी से समझ सकूं, तो ज्यादा मुझे यूट्यूब ही हेल्प हुआ. उसके बाद लिंक्डइन,
लिंक्डइन में बहुत सारे लोग शेयर करते रहते गोलैंग के बारे में। आई फॉलोड ऑलमोस्ट ऑल द पेजेस इन एट लिंक्डइन। ओके, एंड which is the platform did you use to solve the DSA questions? One is lead code itself. From but for basics, it is better you go for W3 schools and CodeChef. ओके, बट Yes, कोडशेफ तो जो paid है। वीकली, जो हम्म पेड तो है ही, बट जो वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, जो लोग यूज करते हैं। नहीं नहीं, आई थिंक वहाँ पे बेसिक्स ये भी है। यू कैन गो फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सो आई चूज कोड शेफ फॉर दैट रीजन, क्योंकि उसमें फ्रॉम अगर वो अरेज है तो अरे, और यूजर इनपुट लेना है तो छोटे छोटे चीजों से भी इट विल गिव यू क्वेश्चन। इट लाइक इन लीड कोड में क्या हो जाता है, देयर विल बी सेट ऑफ क्वेश्चन completely which are fixed. ओके ओके, एंड अश्विनी, हाउ यू प्रिपेयर फॉर डीएसए? बेसिकली आई एम आस्किंग कि आप कितना कितना क्वेश्चन एक दिन में प्रिपेयर करते थे, सॉल्व करते थे? वो स्ट्रेटेजी क्या होती थी? एक हम्म उसमें प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड में होता है, जो आपको हम्म, कंसिस्टेंटली आपको करना उसमें होता है। कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। तो हम्म आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि आप डीएसए में बेसिकली, जैसे आपने भी बताया कि आज जो क्वेश्चन किया, एक वीक बाद वही क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वो सॉल्व नहीं होता। नहीं होता है, तो हाँ। वो आपने मसल मेमोरी कैसे इंक्रीज की, और कैसे अ, आपने अपना डीएसए लेवल इतना ऊपर ले गए कि आपने रेजर पे क्रैक किया, और गूगल का भी अभी रिजल्ट हाँ आए, आई होप पॉजिटिव हाँ रिजल्ट ही आए। आपने हाँ कितने इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू दिए, तो पैटर्न क्या रहता था प्रिपरेशन का, कि ये मेरा पैटर्न है, मैं इस तरीके से प्रिपेयर करती थी? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, हाँ उनको हाँ यही प्रॉब्लम आती है कि क्या पैटर्न फॉलो किया जाए, किस किस लेवल, किस पैटर्न को फॉलो करके हम डीएसए में हाँ। स्ट्रांग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा टू डिफरेंट चेंजेस आए हैं डीएसए सॉल्व करने के लिए। मतलब टेक्स्ट सिस्टम में जहाँ तक थी तब तक मेरा अलग पैटर्न रहा। जैसे मुझे गूगल का कॉल आया, उसके बाद मेरा अलग पैटर्न रहा। तो ओके, पहले वाला ऐसा था कि एज यू सेड प्रॉब्लम ऑफ द डे रहता था। तो जैसे मैं और मेरे जूनियर ऐसे गूगल मीट करके हम दोनों सॉल्व करते थे बैठ के। कभी पेयर कभी, कोडिंग करते थे? हाँ हाँ, कभी कभी ओके, मतलब ऐसा था कि he was pro at coding but I was not that much because I basically started after placements only. तो he used to teach me कहाँ तो अगर मैं अटक गई गई तो then Ram used to tell me like senior, you need to solve the problem of the day question first and you need to never skip even single question. But I face challenges is hard questions. You, without knowing anything, you can't go for hard directly. And I told him the same. I was like, I want to give up. अभी मुझे नहीं करना है अभी इतने सब। कभी जब इंटरव्यू आएगा देख लूंगी तब कर लूंगी। ही स्कोल्डेड मी दैट डे, you are very ready to give up. Always you think of giving up. You shouldn't do that. If it is a hard question, he told me, pick it up. And तुम्हें नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे करो, यूट्यूब में जो भी सॉल्व किया हुआ है उसको पहले एक दो बार देखो। अगर तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो यू ट्राई टू write all the steps of the code however he is writing in your own way. He told me to just copy whatever, and before then I got to know whatever he told is okay. But when I started coding, I picked the hard question. No, it was problem of the day that day. It was hard question only. Then what I did is I gone through the topic, what it was. Then I watched one YouTube video of topic, and then also when I didn't get what it is, I went through the complete question again and again. More than that day, I sat for more than 4 to 5 hours sticking on only one question. And then I after that what I did is I made a notes of each thing, whatever I don't know and what I know in that question. Barely I knew only few things in that, like 5% आप बोल सकते हो 100 में। तो तो अदर बेसिकली नहीं। एक, जैसे आप प्रिपेयर करते थे, तो एक दिन में आपका क्या टारगेट रहता था कि कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नहीं या मेरा वीक में उस कितना सॉल्व करना है, या मंथ में कितना सॉल्व करना है? तो हाँ वो स्ट्रेटेजी कैसे आप रखते थे, कंसिस्टेंसी बना के रखते थे, और कैसे हाँ माइंड मेकअप करते थे कि अगर आपने सोचा कि एक दिन में दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं हुई, तो फिर हाँ कैसे स्ट्रेटेजी रहती?
ये होता था कि हमें ऑफिस जाके आने के बाद थोड़ा वो टायर्डनेस बहुत हो जाता था कि वो दिमाग में नहीं यस, आता था, हमें पिकअप करके करना ही है। लेकिन वो एक रहता, अगर मैं आज छोड़ दूँगी मेरा स्ट्रीक चला जाएगा। तो वो यस। ज़्यादा ऐसे हम लोगों ने स्नैपचैट स्ट्रीक्स नहीं बना रहे थे, हम दोनों पहले से ही माइंड में सेट कर लिए थे, अभी हम स स्नैपचैट का नहीं लीड कोड स्ट्रीक बनाएँगे। तो करेक्ट, वो करेक्ट। चलता था और बट एंड वी यूज्ड सपोज़ आप बट सपोज़ आप अभी तक एरे और स्ट्रिंग ही कर रहे हो और आपके पास प्रॉब्लम ऑफ द डे में ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। हुँ। तो फिर कैसे उसको पिक करते थे? क्योंकि ग्राफ के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं था। I told ना I used to watch YouTube videos and I used to हुँ, clearly see what all things I need to learn for graph. Until then there was no chat GPT. But almost in the first half year I never got any try graph related questions, even map related question. I got is almost strings arrays only. And when it came to graph, actually at that time I got even Google call also, and I started, even ChatGPT was there, and because of ChatGPT, literally I learned graphs, trees, tries, all DP. Almost I learned all advanced things from ChatGPT itself. सो Because एआई इज़ हाँ नॉट आवर हाँ एआई नहीं नो नहीं यस, यस। एआई इज़ बहुत नॉट यूजफुल है। अगेंस्ट अस, एआई इज़ यूज़फुल या बट इट डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट। exactly, because you see in Golang there are no DSA courses and there is very rare DSA problems few people solve that to till arrays or strings. You will never till now you will not find any DSA related questions in Golang. So I used ChatGPT very wisely at that time. That too my other two colleagues suggested, and even we after in tech system we three started doing coding in Golang. These DSA problems literally for graphs, trees, these all we completed through ChatGPT was our tutor at that time. या ग्रेट, ग्रेट। तो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द रेजर पे इंटरव्यू सिलेक्शन Hmm. राइट नाउ। जब आपके Hmm. पास कॉल आया है रेजर पे के Hmm. इंटरव्यू से रिगार्डिंग, Hmm. तो कितने इंटरव्यूज हुए आपके रेजर पे में? अ, 3 हुए हैं। एक तो फर्स्ट राउंड डीएसए, उसके बाद मशीन कोडिंग इंटरव्यू और थर्ड वन मैनेजरियल प्लस एचआर। ओके। हुँ। एंड गूगल इंटरव्यू? गूगल इंटरव्यू का पहले रहता है फ़ोन स्क्रीन राउंड। Phone screen round ऐसा होता है elimination round. If it is negative review in the first round, they will be not proceeding to next rounds. Next, and after phone screen round, there will be three on-site rounds. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, देन लास्ट विल बी गूगलीनेस राउंड। बट मेरे केस में हुआ था कि राउंड 3 मेरा नेगेटिव रिव्यू आया था फ्रॉम वन इन दे गिव सम फीडबैक लाइक नेगेटिव फीडबैक फॉर 2 to 3 things while picking up the data structure which I got confused, and they gave a negative review and they gave me another chance. As they told, you have all three positive feedbacks from previous interviews, so we are going to give you one more chance, and they gave me another chance, and it went very well. And after that it was googliness round is basically kind of HR round, behavioral round. And after that they told me they'll get back to me because there will be a procedure called team matching and all, and when यस, that team considers me as their part of their team, then I'm going to be in Google. यस, यस, यस। कल्चरल फिट, टीम, Yeah, यू कैन से मल्टीपल नेम, बट वो exactly. लास्ट में एक राउंड होता ही है जो कि Hmm. वो भी इम्पोर्टेंट ही होता है, टेक्निकल नहीं होता बट वो भी एक कल्चरल फिट राउंड होता ही है। Exactly. सो हाँ। अपार्ट फ्रॉम डीएसए, हुँ। रेजर पे और गूगल में अपार्ट फ्रॉम डीएसए क्या क्या पूछा गया, या ओनली डीएसए ही मेन फोकस था? नहीं, इसमें गूगल में उन्होंने पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि एज़ यू आर स्टिल अ फ्रेशर, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी सिस्टम डिजाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन। It will be completely DSA only, but it will range from medium to hard. So you can expect hard questions, and you need to solve within 45 minutes, and there will be follow-up questions as well. And after 45 minutes, we are not going even single minute to solve any kind of thing. ओह, दे आर वेरी Exact, स्ट्रिक्ट yeah, very रिगार्डिंग अ टाइमलाइन। exactly. After 45, they used to stop. And रेजर पे में हुआ था एक सिस्टम डिजाइन एलएलडी राउंड, मशीन कोडिंग राउंड। और ओके। इस हाँ, तो गूगल का बेसिकली ये हुआ था कि
I never expected I got that call from Google itself, because that day I got call and we all friends were sitting and we were just sitting in pantry and we're making fun. At that time I got call. I thought Google, I am calling from Google. I was like, मुझे क्यों कॉल करेंगे गूगल से? मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। तो बाद में मैंने कट कर दिया। देन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे कोई बंदा बोल रहा था कि गूगल से कॉल है। अरे यार फेक होगा। देन Yes. हमने, मेरा कलीग बोला, पागल है क्या? अगर कोई कॉल कर रहा है तो पूछ लेती, फेक भी होता तो देख लेते बाद में, ऐसे क्यों Mm, किया था? फिर अगेन हमने कॉल किया तो वो कॉल जा नहीं रहा था, उनका अलग नंबर रहता है। तो जा yes. नहीं रहा था। देन सरप्राइजिंगली आफ्टर रीचिंग होम आई सॉ इन लिंक्डइन देयर इज अ मैसेज, अश्विनी वी ट्राई टू रीच यू आउट बट वो नहीं हुआ कॉल। अपना अपडेटेड रिज्यूमे शेयर करो और ये एक गूगल पेमेंट्स के लो एंड विल शेड्यूल इंटरव्यू। आई लाइक सरप्राइज्ड। तो मुझे लगा ठीक है, तो मैंने दे दिया अपडेटेड रिज्यूमे। फिर मेल आया मुझे फोन स्क्रीन राउंड के, उससे पहले एक रिक्रूटर के साथ मीटिंग था। तो रिक्रूटर ने सब प्रोसीजर बताया क्या क्या होता है। और रिक्रूटर टोल्ड मी इन फोन स्क्रीन राउंड देयर विल बी, इट इज like elimination round. You can take a time. He will be sharing me few resources to study what I may get in interview, like topic और कहाँ पे focus ज्यादा करना है। तो he told me clearly it's only DSA, nothing rather than DSA. Then he scheduled first round, phone screen round. At that time, I saw in Google reviews that in few interview preparation reviews and all, there I saw we can ask 2 to 3 weeks of time to them. Google will allow for that. If we want to revise or study something, then I did same. I told my recruiter like, Vibhav, I need some more time because I forgot almost all the concepts and I need to revise. And he told you can take almost 3 weeks, but not more than that. Then I told you can give me 2 weeks, not 3 weeks. So he told I can give you 2 weeks. Then he scheduled after 2 weeks. So in that 2 weeks, literally I almost forgot each and every concept. I was not aware of any algorithms. तो मुझे लग रहा था कि कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल भूल गए। मेरे दो कलीग्स जैसे मैंने बताया, वो भी टेक सिस्टम में ही थे, विकल्प एंड संदीप। व्हाट दे डिड इज दे टोल्ड, ये गूगल है, हम में से किसी को नहीं आया है, तुझे आया है, तुझे नहीं छोड़ना है, तुझे ये करना ही होगा। एंड मोर ओवर ये एलिमिनेशन तू आगे मत जा, एटलीस्ट एलिमिनेशन दे यूज्ड टू टेल मी लाइक दिस। एंड वो दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। उसमें से संदीप, ही आई थिंक इवन ही सॉल्व मोर देन 500 क्वेश्चंस इन लीड कोड। वो Okay. पहले से ही डीएसए बंदा था, कंप्लीटली डीएसए। तो उसने बताया, यू नो नीड टू वरी, आई विल हेल्प यू आउट, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई विल मेक यू प्रिपेयर फॉर गूगल फर्स्ट राउंड। देन दे बोथ सैट विथ मी ऑल 2 weeks, डे एंड नाइट। लाइक हमारा ऑफिस के बाद यही होता था कि रात 3 बजे तक संदीप एक्चुअली ही गेव मी वन लिस्ट ऑफ repeated questions from Google, like what all interview experience उसमें सभी लोगों ने मेंशन किया है ना, उसने सारा पिक करके एक एक्सेल शीट में मेंशन किया सारे क्वेश्चंस। और उसने सारे टॉपिक वाइज मेंशन करके उसने बताया, लेट्स गो फ्रॉम टॉपिक वाइज एंड solve this question, all three will solve these questions. Then we used to even discuss optimization etc things, and they helped me to crack that फर्स्ट राउंड एक्चुअली। तो हमने Mm, ऑलमोस्ट ग्राफ मैप तक नहीं किए, लेकिन हमने अरेज, स्ट्रिंग्स, ट्रीज तक कर लिए थे। ट्रीज तक हमारा सब हो गया था। उसके बाद फर्स्ट राउंड आया, फोन स्क्रीन राउंड में आया था क्वेश्चन अरेज रिलेटेड, तो वो भी मीडियम था। तो वो मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी फॉलो अप क्वेश्चन में मुझे वो अल्टर नहीं कर पा रही थी, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा था क्लियरली। तो मुझे लगा ये नहीं होगा, I won't get it, because in even many of the reviews I saw that they won't proceed if you are not completing the answer completely. इवन टाइम okay. कॉम्प्लेक्सिटी से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है एट द एंड में, जो भी कोड हमने लिखा है। तो उसके बाद मैंने वो तो बता दिया था, लेकिन समवेयर इंटरव्यूअर वाज फीलिंग आई वुड हैव डन मच बेटर देन दैट। देन आई थॉट आई वोंट गेट, देन
चली गई थी मैं ऑफिस, ठीक है अब नहीं आएगा, अभी थोड़ा रिलैक्स चिल करेंगे। तो आई गॉट अगेन कॉल, रिक्रूटर टोल्ड अश्विनी फीडबैक इज पॉजिटिव एंड इंटरव्यूअर इज इम्प्रेस्ड बाय योर कोडिंग स्टाइल। एंड आई वाज लाइक अरे मैं तो ऐसे ही, ये तो इतना सीरियसली तो नहीं लिखा था। देन वॉट एवर फाइन, देन ही टोल्ड there will be 3 more rounds, you need to crack all these 3 rounds, then only we'll go to boolean round. सो सेकंड राउंड भी मुझे आया था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन। और उसके बाद मुझे ये ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे गोलैंग के इनबिल्ट जो भी फंक्शंस रहे थे, उसने तुमने क्यों अप्लाई किया, इसमें क्यों यूज किया, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। और उसके बाद सेम फॉलोअप क्वेश्चन, बिकॉज दे आस्क फॉलोअप क्वेश्चन इन एवरीथिंग। तो एंड बेसिकली गूगल में सारे राउंड डीएसए के ही हुए। हम्म। एंड रेजर पे में आपने बोला डीएसए प्लस डीएसए सिस्टम प्लस डिजाइन। एल, हाँ। तो सिस्टम डिजाइन में रेजर पे में क्या? एक क्वेश्चन था कि मतलब बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि तुम्हें पैटर्न पहले पिक करना है कि कौन सा, तो मैंने पिक किया था वो क्वेश्चन के लिए सिंगलटन पैटर्न, तो यूज करने के लिए। बाद में आई कांट से द एग्जैक्ट क्वेश्चन हियर यस यस। because it is against our company rules. So, but ओके yeah, I can say they gave something like parking management application. Yeah, we ओके। need to, yeah, and after that they gave some follow-up question in that we need to solve that. So I wrote code for that, and we no need of completely like execution चाहिए ऐसा कुछ नहीं. At least even though your logic is right, they will move forward with it. ओके। तो Mm, जब रेजर पे से फाइनली कॉल आया कि यू आर mm, सेलेक्टेड, तो हाँ. कैसी फीलिंग थी वो? बिकॉज मुझे रेजर पे इज ऑल्सो becoming very big, like you can say yeah, Fang Mang is big companies, yeah, but जो अभी इंडिया के fintech. स्टार्टअप्स थे, हम्म. जोमेटो, रेजर पे, हाँ. ये भी बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, इनका इंटरव्यू क्रैक करना भी इजी नहीं है। तो जब हाँ. रेजर पे से कॉल आया कि यू आर सेलेक्ट, हम्म. तो कैसी फीलिंग थी वो? जब रेजर पे का एक्चुअली कॉल आया था तो मेरे दिमाग में पहले था, मेरा गूगल का चक्कर चल रहा था। अरे कुछ भी हो जाए यार, गूगल गूगल ऐसे, मतलब दोस्तों ने मेरे दिमाग में भर दिए थे अश्विनी गूगल अलग होता है। तो यस। रेजर पे टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक कलीग के अलावा हम कोई नहीं जानते थे कि इट्स दैट ओ। बिग, हाँ बिग कंपनी। एंड इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट एज गिविंग इंटरव्यू जस्ट लाइक देना है, जब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है यू शुडंट इग्नोर दैट, करेक्ट एंड करेक्ट। दैट्स द केस। तो माय वन ऑफ माय फ्रेंड विकल्प ही टोल्ड जस्ट गिव इट, लेट्स सी। एंड व्हेन आई गॉट कॉल, फाइनल कॉल like Ashwini, it's a positive feedback, and just let's discuss some more things in another call. So I told to her, I need some time, I will discuss with you. And then I discussed with my friends, they both told me, Ashwini, better you go for Razorpay now, because we saw in Quora that uh, Google will take more time. Almost it took 1 year for my interview for all 3 rounds. यस। So yeah, then as they both told, Ashwini, let's you choose this Razorpay as your next company, and you just tell her yes, I'll be available for next meeting. And I told yes to the recruiter. Then she started sharing me all the details like what all and which project I'm going to work on, etc. And I was bit happy that time. अच्छा ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिल रहा है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड हाँ. लेटर ऐसे ही क्लाइम हाँ. की जाती है, अभी रेजर पे हाँ. गूगल भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट भी एग्जैक्ट. हो जाएगा। हाँ. यस। तो तो यस यस, कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे लगा कि रेजर पे बाद में, तब जाके मैंने रिसर्च किया, तब जाके पता चला रेजर पे समथिंग वेरी डिफरेंट कंपनी। अगर मैं करेक्ट प्रे करेक्ट करके भी पूछूं ना तब भी वो नहीं मिलने वाला था बहुत लोग उसके लिए तड़प रहे हैं। तो मुझे मिला, तब करेक्ट। जाके हम तीनों बहुत सरप्राइज थे। दे बोथ टोल्ड मी, अश्विनी यू गो फॉर इट, एंड बाद में हमें भी बुला ले। सही लगा मुझे, कंपनी के वैल्यूज हो गए और द वे इट इज ग्रोइंग एंड हाउ दे स्टार्टेड देयर स्टार्टअप and their journey I felt very good, especially Harshil Mathur and Shashank sir. I read their all the journey, how they started from Rajasthan and how they built it in Bangalore. And when I got to know, when I joined company, I felt very different because I learned many things, especially fintech. मुझे ना क्रेडिट कार्ड है, करेक्ट I was करेक्ट।
totally not aware about that. Here I And learned. Ashwini, if you Uh, know that I am also a senior software engineer in a NBFC, which is a uh, fintech. uh, So basically, Razorpay is uh, our client. yeah, So I have integrated Razorpay APIs in our system, and yeah, it is very good, and exactly. documentation is very good. So you Yeah. will learn a lot of thing in Razorpay, I think. Exactly. Yeah. I almost within 6 to 7 months I learned a lot like which I never learned before. It's like Yes, I yes. felt like I'm like every day I'm learning very new things in that. And the way they built their products, they are amazing literally. Again, I know they are completely into AI. That is Oh, another thing. Yeah, they are so working how on it. you are using AI in your work Hmm. as you are Like saying that yeah, what now type they of are AI and how they are using AI? currently we are on Cursor. Yes, yes. They, Cursor is a code editor, yeah, but yeah, is there any tool that you guys build related to AI for yourself? yeah. Actually, we built one notebook LLM. Actually, Okay, recently, which I had, but it is used for specific services, not completely in what for all the services. Only for mine is banking team. We are going to use it. Okay, so we are planning it for complete Razor Pay. So it is still in process. Once it is built, then everyone can use it. okay. Ashwini, Hmm. start. Let's start talking about the AI. Okay, Yeah. complete Hmm. AI. So Hmm. I have a question. Hmm. As you have prepared for the tech interviews Hmm. from last few months or years, तो Hmm. अभी एआई चल रहा है. तो आपको क्या लगता है इतना मेहनत करने के बाद जब डीएसए करने के बाद एक जॉब आती है, अभी फ्यूचर में जब एआई आ रहा है तो आपको Hmm. लगता है कि फ्यूचर में डीएसए खत्म हो जाएगा और डीएसए ना पूछकर लोग एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, इंटरव्यू का जो Hmm. प्रोसीजर है, इंटरव्यू का जो राउंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि एआई के आने से इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो चेंज हो सकता है? अ, मुझे लगता है एआई जानना अभी ज़रूरी है, सबके लिए। एटलीस्ट तुम डीप में मत जाओ, बेसिक तो आइडिया रहना चाहिए कि एटलीस्ट हम कैसे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, वो तो आइडिया होना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं बट उससे तो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं होगा। स्पेशली इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इवन दो एआई कैन राइट ऑल द एल्गोरिदम्स परफेक्टली, समवेयर यू नीड टू गाइड इट लाइक तुम्हें भी कुछ वहाँ पे चेंजेस करना पड़े। यू कैन सी नाउ कर्सर, आई थिंक यू आर यूजिंग कर्सर राइट? Yes, I am सो also using हाँ, cursor, format, हाँ, complexity. या सो इट्स नॉट completely लाइक तुम कुछ उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो और वो करेक्ट परफेक्टली दे रहा है तुम्हें उसका सॉल्यूशन, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इवन यू नीड टू ऐड फ्यू चेंजेस इन दैट। सो डेवलपर्स की तो जरूरत बिल्कुल है वहाँ पे। No, एंड I am not asking कि डेवलपर रहेंगे नहीं हम्म रहेंगे. I am हम्म asking कि एआई आने से क्या हम्म डीएस से थोड़ा कम हो सकता है? क्या इंटरव्यू प्रोसीजर चेंज हो सकता है? क्या हम्म फ्यूचर में रिक्रूटमेंट के लिए जो टीम्स है वो इस पर डिस्कस कर सकती है कि हम लोग हाँ, डीएस से उतना फोकसली ना पूछे. अभी क्या है कि अभी 80% डीएस से पूछा जाता है, 20% सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिजाइन, और हाँ। बेसिक छोटा बहुत डेवलपमेंट पूछ लिया जाता है. बट अ, फ्यूचर में जब एआई ही आ रहा है, सब जगह सारे हुँ, प्लेटफॉर्म में एआई इंटीग्रेट हो रहा है, ये तो हुँ, क्या पता रिक्रूटमेंट प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाए और डीएस से 20% हो जाए और एआई से रिलेटेड जो चीजें हैं वो 80% हो जाए. तुमको क्या लगता है ये पर्सनल लेवल पर, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में भी एआई यूज हो रहा है, हुँ। तुमको क्या लगता है? पर्सनली मुझे लगता है इट्स इम्पॉसिबल। मुझे ओके. लगता है डीएसए होना बहुत ज़रूरी है। इवन नॉट ओनली नाउ, इवन आफ्टर 50 इयर्स आल्सो आई एम टेलिंग दिस। ओके. या क्योंकि एआई आ रहा है, आई एक्सेप्ट इट, बट समवेयर देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू गेट न्यू आइडियाज। ऐसे होता है कि अभी कोई बिगिनर आ रहा है, स्टूडेंट अभी आ रहा है, एआई हम यूज कर सकते हैं ठीक से, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रिलाई ऑन एआई। एंड डीएसए तो ऐसी चीज है कि अभी इंटरव्यू में भी हो गया, एआई क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन जहां तक पूछेंगे कि आर यू एबल टू गिव
some proper prompt and how much you know about AI. Are you able to build some products using AI to their company? यहाँ तक हो सकता है, लेकिन they can't what uh, uh, replace exclude. the DS Yeah, with. yeah, they can't exclude and go directly to AI. They need DSA. Okay, okay. And Ashwini, let's talk about the money right now. Hmm. तो अभी रेजर पे में आप का सिलेक्शन हो गया है, तो Hmm. रेजर पे में क्या हम एक रेंज जान सकते हैं कि आपका पैकेज कितना है, एंड हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव बिफोर रेजर पे? Before Razorpay, I had 1.5 years of experience, and Okay, so when you joined the Razer Pay, so can you please give me, if someone have 1 to 2 years of experience as you have, तो कितना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक एक्सपेक्ट रेशो आप अगर बता दो तो। Razorpay में यस। हाँ, मैं रेंज तो बता ही सकती हूँ। दे कैन एक्सपेक्ट टिल 15 to 20 ओके। एज अ SDE. एज एस डी इन रेजर पे, हाँ, एंड व्हाट या अबाउट गूगल? गूगल का व्हाट दे मेंशन मी इज आई कैन से रेंज इज 35 तक. 35 to 40 या दैट्स इट. CTC? या फॉर SDE. ओके, ओके। सो what advice do you give to the freshers who want to join top tech product based companies? So how should they prepare for the interview, and how what should mind what their mindset should be? क्या आप बोलोगे उनके बारे उनको कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहते हो? आप कैसे अभी भी रेजर पे में आपका सिलेक्शन हो गया है, अभी भी डीएस से करते हो? करती किस हूँ. तरीके से अभी अभी थोड़ा सा पुश बैक किया है, या एग्रेसिव लेवल पे भी अभी भी करते हो एग्रेसिवली? मैं ये मानती हूँ कि some there are few things which we shouldn't stop at any cost, because somewhere फ्यूचर में भी वो काम आते ही है. आ सकते हैं नहीं, लेकिन आते ही है ज़रूर. बिकॉज़ आई फेल्ट इन माय प्रीवियस इंटरव्यूज़, बिकॉज़ मुझे लगा कि ये फ्यूचर में काम इतना ज़्यादा नहीं है, बट ऑल ऑफ सडन यू नेवर नो यू विल गेट द चांस. when you will get the chance, but we need to be updated according to the like. अभी एआई भी आ रहा है जैसे मैंने बताया, तो मुझे जैसे ही पता चला कि एआई भी अभी फ्यूचर है, मुझे इसके रिलेटेड थोड़ा तो भी जानकारी होना चाहिए कि एआई क्या है, हम कैसे यूज करें, दूसरे दूसरे कंपनी में कैसे यूज किया जा रहा है, इनके मॉडल कैसे नए नए फीचर से जुड़ा हुआ है, ये सब देखने के लिए. तो वो इतना मैं आइडिया रखती हूँ. अगर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बस इतना ऊपर-ऊपर का ज्ञान रखती हूँ. लेकिन डीएसए ऐसा है कि मुझे जहाँ तक पड़ा है पता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया. एंड इवन आई स्पोक टू फ्यू सीनियर्स फ्रॉम गूगल एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट, एंड दे इन्फॉर्म मी दैट अश्विनी, टिल नेक्स्ट टू 20 years I don't think so DSA will go. DSA will be ओके, in interview process. They are not going to remove it. And ओके, ओके, even Sundar Pichai sir, in their many of the interviews, they mentioned that DSA is the main thing in Google. ओके। Yeah, now they प्रॉब्लम are सॉल्विंग focused. माइंडसेट इज दे Yeah, always demand, want. and problem Yeah, solving mindset is always in demand in yeah. software engineers. Yeah, almost. I watch their podcast and YouTube videos also. Even as even I see Sam Altman, even he said that ChatGPT or this AI is going to boom like anything, and it may replace many things. But yeah, it will replace, but not completely. I can say 60%, but other 40% we need to be aware of these all things. डीएसए हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये सारे चीज तो हमें पढ़ के रखना ही होगा. इवन इन बिटवीन, मतलब कुछ ऐसे कंपनीज है, इवन देर इज एआई, यू नो एवरीथिंग, दे वांट यू टू, दे वांट लाइक, ऐसे जानबूझ के भी वो पूछ लेते हैं कि डीएसए ही आना चाहिए तुमको. ऐसे नहीं कि यू नो यू माइट हैव बिल्ट कंप्लीटली चैट जीपीटी, दे वांट यू टू बी प्रो एट डीएसए. Okay. So Ashwini, thank you very much for joining the podcast. I या have learned so much from you. I think audience learns so much from you. या So I have asked so many questions from you to या you. So is there anything that I missed it and you want to mention?
कुछ ऐसा है जो आप अ, जिसको मेंशन करना चाहते हो मैंने मिस किया? नहीं, बट बस मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी स्टेप वाइज डीएसए स्टार्ट करना चाहता है ना, आई वांट देम टू गो एंड पिक लिस्ट। देयर विल बी लीड कोड में ऐसे होता है कि टॉपिक वाइज सारे लिस्ट होते हैं कि बेसिक क्वेश्चन, और यूट्यूब में भी बहुत सारे रिसोर्सेस ने मेंशन किया हुआ है कि वी नीड टू फॉलो पर्टिकुलर लिस्ट टू सॉल्व डीएसए क्वेश्चन। देयर इज अ डीएसए शीट्स ए टू जेड। तो मैंने भी वही फ़ॉलो करने से मुझे समझ में आया कि पैटर्न वाइज़ जा सकते हैं, कि ये एक पैटर्न फ़ॉलो करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न फ़ॉलो, जस्ट थोड़ा-सा अल्टर करके हमें कोड लिखना रहता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ गो थ्रू दैट शीट्स एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, एंड इफ anyone is thinking of continuing to solve DSA problems, please don't stop even in the middle. If you take a break, it will take a long time to get back to it again. This is करेक्ट, my करेक्ट। personal कंसिस्टेंसी experience. इज़ द मेन। मेन थिंग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कुछ तो छूट जाएगा। और और एक था कि गूगल के टाइम पे, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट गैप में वो बहुत सारा रिवीजन हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भी अपॉर्चुनिटीज आ सकते, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसा नहीं कि वी नो नीड टू वेट, दे मे कम एनी टाइम। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड rather than going and reading that time day and night. Just be prepared previously. ओके, Hmm. so great chit chat with Ashwini Rathod, who is working as Yeah. a software engineer in Razorpay and Yes. also waiting for the response from Google. Google. I hope she gets the positive response. Yeah. And everyone, keep hustling, keep preparing for the interviews, and keep learning new things. TSA, AI, system design, and we'll see you again. Yeah. Uh, if you like the podcast, share and subscribe. Bye bye. Yeah. Yeah. Thank you. Bye, Ashwini. Yeah. Bye.